Hello students, here SJ sir. Today is the second lecture of the physics in which we will continue some basic concepts of algebra. In the algebra, today we will discuss quadratic equation and binomial expansion. So here we are starting the first topic of the algebra in the today's lecture, that is quadratic equation. So first we will define that what do you mean by quadratic equation. So I will say that the equation which is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. Ax square plus bx plus c equals to 0. So in this equation, okay, what we are trying to say that the highest power means the degree of the equation. If the degree of the equation is 2, then this equation becomes quadratic equation. Okay, so here comes the definition कि अगर कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, ठीक, that means that equation is quadratic equation. And here what do you mean by a and b and c? A is the coefficient of A is termed as coefficient of x square, B is termed as coefficient of x, and C is just a constant. So the highest power is called degree of the equation. So the quadratic equation means if the degree of any equation is 2, then the equation is called as quadratic equation, and this is the standard form of the quadratic equation, and these are defined as the coefficients of the different terms. So in this way we can define the quadratic equation. Now what we can see, if the degree is 2 of any variable in the equation, it means इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो वैल्यूज पॉसिबल हैं. अब हम उन वैल्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं. तो जो वैल्यूज इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उस वैल्यूज को बोलेंगे रूट्स. तो अब हम बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन की. सो व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स ऑफ द इक्वेशन? ठीक, सपोज the degree is 2, so here two values are possible which can satisfy this equation. So let these two values which are named as roots of the equation are x1 comma x2, x1 comma x2. So if we put x1, अगर हम x1 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारी जो इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c. And if x1 is the root, then this will equation comes to 0. Similarly, if we put x2 in the equation, then it becomes ax2 square plus bx2 plus c, and this will also be equal to 0. Why they are equal to 0? Because x1 x2 are the roots of the equation. What do you mean by roots of the equation? The values which satisfy the equation. Okay, so here we are defining some basic terms of the quadratic equation. Now how can we find these roots of the equation? Let us see that. So here for the roots of the equation, we can apply Shri Dhanacharya जी formula. In the respect of the Indian mathematicians, श्री धनाचार्य जी, उन्होंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. तो अभी देखते वाले हैं हम कि क्या है ये फॉर्मूला. ठीक है, काफी लोगों को पता होगा. जस्ट फॉर द रिवीजन हम ये देख रहे हैं. अगर हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू c एंड इट हैज टू रूट्स,
x1 comma x2, then according to the formula x1 और x2 की जो वैल्यूज होंगी that will equals to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. It means here you can see that प्लस और माइनस दोनों यूज हुए हैं। तो अगर मेरे पास दो वैल्यूज चाहिए मुझे, तो मैं x1 के लिए प्लस साइन ले लूंगा और x2 के लिए माइनस साइन, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, x1 के लिए मैं निगेटिव साइन ले लूंगा और x2 के लिए पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला है जिसको हम नाम देते हैं श्री धनाचार्य जी फॉर्मूला। उन्होंने इसका डेरिवेशन किया है, उस डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो आपको कंपेयर करना है एंड देन यूज फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ अब हम कुछ अलजेब्रा देखेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन का। अलजेब्रा मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास, सपोज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास दो रूट्स आ गए। सपोज इसका दो रूट्स हैं इसके पास, x1 और x2। तो अगर मैं x1 लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और सिमिलरली अगर मैं x2 लिखूंगा तो x2 मिलेगा माइनस बी माइनस साइन अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि x1 और x2 अगर ये डिफाइंड है तो डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर की जो क्वांटिटीज है दैट शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर x1 एक रियल क्वांटिटी है देन रियल क्वांटिटी के लिए b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इसी तरीके से अगर x2 भी एक रियल है तो अभी सेम कंडीशन मिलेगी, b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटीज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, अदरवाइज ये इमेजिनरी हो जाएंगे और इमेजिनरी चीजों का फिजिक्स में कोई काम नहीं। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप देखोगे इमेजिनरी चीजों का क्या काम है, लेकिन फिजिक्स के रिगार्डिंग हम इमेजिनरी रूट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हमारी ये कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी लोग याद रखेंगे कि x1 x2 अगर रियल होने चाहिए तो b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें ड्राइव करना चाहूंगा, जैसे कि सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मींस x1 प्लस x2। तो अगर हम x1 प्लस x2 निकालें यहां से ऊपर से तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये प्लस का अंडर रूट b² माइनस 4ac माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ इतना माइनस b/2a एंड माइनस b/2a दैट इज इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, तो आप चाहे अलग अलग करके इसको अगर ऐड करोगे तो ये प्लस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस b/2a और माइनस b/2a, दोनों ऐड होकर बनेगा माइनस b/a। तो दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द रूट्स। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मिल जाएगा, दैट इज x1 इंटू x2, और वो आता है c अपॉन a। मैं ड्राइव नहीं कर रहा, ठीक है, आप चाहें तो प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, आंसर शुड बी c अपॉन a। ठीक, नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस ऑफ द रूट्स ढूंढ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स लाइक x1 माइनस x2, तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो देखो माइनस b/2a माइनस b/2a कैंसिल हो जाएंगे, प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट b² माइनस 4ac और डिवाइड में 2a।
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। ठीक है, तो ये हमने कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर लिए, दैट इज अलजेब्रा ऑफ द रूट्स, मींस प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस। इनकी मदद से हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द रूट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये जो चीज होती है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो चीज होती है दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर द रियल रूट्स। ठीक है, तो ये सिर्फ एक टर्म है जिसको आपको याद रखना है, दैट्स नथिंग। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पर, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम कि इन फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हमसे पूछा गया कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब x की दो वैल्यूज बताइए जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसका मतलब है कि रूट्स बताइए इन दोनों इस इक्वेशन के। तो किस तरीके से करना है, हम जानते हैं रूट्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज x1, x2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर हम यहां पर कंपेयर करें, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें a भी मिल जाएगा, b भी मिल जाएगा और c भी मिल जाएगा। कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, b की वैल्यू मिल रही है -5 एंड c की वैल्यू 6। इसको उठाकर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। x1 जो कि पहला रूट है, x1 के लिए मैं पॉजिटिव साइन चुन रहा हूं, तो जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -5 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 a that is 1 into c that is 6 divided by 2a, तो that is 2 into 1। तो यहां से मिला हमें 5 प्लस 25 माइनस 24 that is 1 डिवाइड बाय 2, ये बना 3। और अब मैं x2 का अगर हम वैल्यू निकालें x2 की तो हम कौन सा साइन ले लेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर लेते हो तो यहां बनेगा 5, यहां बनेगा -1 डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज 4/2, जिसको हम 2 निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x1 की एक वैल्यू 3 एंड x2 की वैल्यू 2। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहां पुट करके देखें तो जैसे अगर 2 पुट करके देखते हैं तो दैट इज 4 माइनस 10 दैट विल बिकम -6 और +6, तो ये टोटल बनके कितना हो जाएगा 0। यानी ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई करेंगी, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, इसके रूट्स। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला रूट्स निकाल सकते हैं। पर मैंने आपको बताया कि आपको एक दूसरी तरीके से भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप जेई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दूसरे तरीके से कैसे सोचे। मान लो फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन कुछ तो निकालना है, आंसर्स निकालने हैं, तो किस तरीके से और सोचा जा सकता है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज यही इक्वेशन है और हमें इसके रूट्स निकालने हैं। मुझे एक चीज पता होनी चाहिए दैट इज सम ऑफ द रूट्स। मान लिए मैंने इसके दो रूट्स हैं x1 और x2, तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया x1 प्लस x2, और इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि होता है -b/a। तो अगर मैं -b/a लगाऊं तो ये बनेगा -5 अपॉन a दैट इज 1। तो मेरा जो सम ऑफ द रूट्स मिला मुझे वो मिला 5। और इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज x1 इंटू x2, और ये मिलेगा c/a, c दैट इज 6 और a दैट इज 1, तो आंसर आ गया 6। इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो नंबर हैं,
जिनका सम 5 होना चाहिए और प्रोडक्ट 6। तो अब ऐसे दो नंबर्स बताओ। तो हम क्या करेंगे, 6 को कैसे बना सकते हैं, सपोज 1 इंटू 6 करके भी बनाया जा सकता है, ठीक है, 2 इंटू 3 करके भी बनाया जा सकता है। तो 6 और 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से अगर हम सोच रहे हैं, थोड़ा सिंपल एग्जांपल है, जल्दी सोच लिया, लेकिन ठीक है और भी एग्जांपल्स में हम सोच सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 6 इंटू 1 6 तो दे रहा है, क्या 6 प्लस 1 5 दे रहा है, नहीं दे रहा, तो हम इस वाले को नहीं लेंगे। 2 इंटू 3 6 मिल गया, 2 प्लस 3 5 मिल गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी हमारे जो नंबर्स हैं यानी जो रूट्स हैं वो हमें मिल चुके हैं। आप इसको या तो x1 को 2 ले लो और x2 को 3, या फिर आप x2 को 2 ले लो और x1 को 3, आपके ऊपर है, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस बिल्कुल सिंपल सी हैं, ठीक। अब इससे भी हमने क्या निकाल दिए, देखो डायरेक्टली रूट्स निकाल दिए। हमने कोई भी श्री धनाचार्य जी का फॉर्मूला यूज नहीं किया है, फिर भी हमने रूट्स निकाल दिए। दैट इज अवर मैथमेटिकल लॉजिकल अप्रोच, जो कि हमने अपने माइंड से डेवलप कर ली कि हाँ इस तरीके से दो नंबर। लेकिन ये अप्रोच जानने के लिए भी आपको किस चीज का यूज करना पड़ा, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का, ठीक है। तो ये चीजें आपको तो पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे बस इतनी सी बात कहूंगा कि कम से कम आपको जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं बोर्ड पर फॉर द फिजिक्स आपको ये याद होने चाहिए। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहां पर हम अपनी जो मैथमेटिकल अप्रोच दैट इज लॉजिकल अप्रोच उसको नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमें वेरिएबल्स के फॉर्म में इक्वेशन दी। तो हम अच्छा होगा कि इसको फॉर्मूले की मदद से कर ले तो जल्दी हो जाएगा, वरना हमें a को कुछ मानना पड़ेगा, b को कुछ मानना पड़ेगा, एंड देन फिर हमें ऑप्शंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि a और b के लिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस चीज को हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, पर अगर हमें कोई ऑप्शन नहीं दिए तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, फॉर्मुलेटिव अप्रोच से। तो फॉर्मूला लगाएंगे सीधे सीधे। तो अगर हमारे पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास दो रूट्स होते हैं x1 x2, जो कि हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम x1 के लिए पॉजिटिव साइन ले लें तो x1 हमें मिलेगा माइनस ऑफ b कितना है, माइनस 4a प्लस अंडर रूट b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है यहाँ 4, और c इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a कितना है 4, तो ये मिला प्लस का 4a प्लस अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 8। और अब इसको सॉल्व कर दूं तो 16a स्क्वायर से माइनस 16a स्क्वायर कैंसिल, 4a प्लस साइन ले रहा हूं मैं, तो रूट के अंदर से जब खोलते हो तभी प्लस माइनस मिलेगा, लेकिन आपको साइन कौन सा लेना है, एक ही साइन कंसीडर करना है, दैट इज प्लस। अगर ले रहे हो तो प्लस लेना है, 16b स्क्वायर को मिलेगा प्लस का 14b डिवाइड बाय 8, तो ये बनेगा a प्लस b बाय 2। ये मिल गई हमें x1 की वैल्यू। और अगर हम x2 की वैल्यू निकालें तो वो तो बहुत सिंपल सी आएगी, इस प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस। तो x2 हमें मिल जाएगा डायरेक्टली, मैं लिख सकता हूं यहां पर प्लस की जगह क्या लेना है हमें, ये वाला माइनस, तो सब जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस। तो x2 मिलेगा मुझे 4a माइनस 4b बाई 8 एंड दैट इज इक्वल टू a माइनस b बाय 2। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो हमें जो आंसर मिला डायरेक्ट वो मिला a माइनस b बाय 2। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक आ गया a प्लस b बाय 2 और एक आ गया a माइनस b बाय 2। तो इस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले दोनों रूट्स निकाल दिए।
तो यहाँ इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आनी चाहिए फॉर द फिजिक्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो टॉपिक है ये आप मैथ्स में और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ फिजिक्स के कंप्लीशन के लिए इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सफिशिएंट है। तो मैं आपसे बस एक ही चीज बोलूंगा कि जो फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए उनको याद कर लो, और ये 2-3 क्वेश्चन जो हमने किए हैं अगर ये आपको आ गए हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिजिक्स के रिस्पेक्ट में आ गई है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा का ही, ठीक है, लास्ट टॉपिक जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी थ्रू आउट द फिजिक्स, बायनोमियल थ्योरम। हो सकता है ये आपने पहले कभी ना सुना हो, ये नया है, नया टॉपिक है, तो इसको बहुत ही फोकस और फुल एफिशिएंसी के साथ देखेंगे हम, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखो, x प्लस a की होल पावर n, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर हमें पता होना चाहिए कि इफ x और a यहां पर रियल नंबर्स होंगे एंड n जो है यहां पर पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब हम बायनोमियल थ्योरम की मदद से x प्लस a की होल पावर n को क्या लिख पाएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो जरा ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स नई नजर आएंगी तो घबराना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे हम उन टर्म्स को और सिंप्लीफाई करते चलेंगे। तो x प्लस a की होल पावर n को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। तो देखो जरा, nc0 ठीक है, x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस, अगर ऐसे ही चलता जाऊं और कोई भी एक जनरल टर्म लिख लूं, तो देखो जनरल टर्म अगर मैं आरथ टर्म पे जा रहा हूं, ये 0 हो गई, ये 1 हो गई, सेकंड दैट इज आरथ टर्म, तो r नीचे आ जाएगा, ऊपर n, x की पावर n माइनस r a की पावर r। और अगर इस तरीके से चलता गया तो लास्ट टर्म जो बनेगी दैट इज ncn x की पावर n माइनस n a टू द पावर n, ठीक है। तो आप a टू द पावर 0 को क्या लिख सकते हो, 1। इसी तरीके से x की पावर n माइनस n को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0 दैट इज 1। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये बन जाता है, ठीक है, दैट इज बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की होल पावर n अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। तो अब हम कुछ चीजें इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक टर्म पर टोटल पावर अगर देखें x और a की मिलाकर तो कितनी बन रही है, n। देखो जरा, n माइनस 1 प्लस 1 n प्लस 0 n माइनस 2 प्लस 2, फिर से कितनी बनी, n। तो टोटल पावर कितनी बननी चाहिए, n, ठीक है। अब मैं अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लूं तो कितनी होंगी इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 0 से n तक लेकर कितनी, n प्लस 1, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से n तक, तो 0 भी काउंट करना पड़ेगा। तो डेट विल बिकम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1। अब ये जो चीजें हैं ये आपको काफी नई दिख रही होंगी कि nc0 nc1 ये सब है क्या। तो देखो इनको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन में, nc0 nc1 nc2 इनको बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स। अब इनका फॉर्मूला हम देखेंगे, लेकिन बोलते क्या है, बायनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो दीज आर द टर्म्स जो आपको एक एक्सपेंशन में, कौन से एक्सपेंशन में, बायनोमियल एक्सपेंशन में याद रखना है। ये फॉर्मूला किस तरीके से आप अगर आप देखो तो आप काफी इजीली इसको बना सकते हो आर टर्म के बेसिस पर,
ठीक है, तो सिमेट्री है एक तरीके की। तो अगर आप बार बार देखोगे इन चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ टर्म्स। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं NCR। ठीक है, लाइक सपोज अगर मुझे 3C2 की वैल्यू निकालनी है या मेरे को निकालनी है 5C4 की वैल्यू, तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं, यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। तो मैं यहां जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, R या कुछ भी हो सकता है और N भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि NCR दैट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसमें हमेशा R जो होगा लेस देन इक्वल टू N होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, R कभी N से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस चीज को किस तरीके से लिखा जाता है, NCR का फॉर्मूला होता है इससे डरना नहीं। ये जो साइन देख रहे हो एक्सक्लेमेटरी वाला, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल्स क्या होते हैं ये हम बहुत आगे देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं सिंपल लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि जब आप पढ़ने के बाद दोबारा रिवाइज करोगे अपने नोट्स तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों लिखा था। अब फैक्टोरियल्स क्या होते हैं उसका अलग फॉर्मूला होता है। तो देखो, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n इंटू उससे एक घटा दो, फिर इंटू एक और घटा दो, और इस तरीके से कहां तक जाना है हमें, 1 तक, जब तक 1 ना आ जाए। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ n फैक्टोरियल। इस चीज को बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करूं तो देखो हम कैसे बना सकते हैं। n फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ये कहां तक जाएगा, 1 तक, डिवाइड बाय r को लिखेंगे तो r इंटू r माइनस 1, और ऐसे ही चलते चलते कहां तक जाएगा, 1 तक। ये हो गया r फैक्टोरियल। n माइनस r फैक्टोरियल क्या बनेगा, n माइनस r माइनस 1, और ऐसे कल जाते जाते कहां तक जाएंगे, 1 तक। तो ये फॉर्मूला बन गया NCR का। ठीक है, आपको कुछ नहीं, फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करना है, एक बार n के लिए, r के लिए और n माइनस r के लिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर, जो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे रिमेंबर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला वेरी इजीली। अब हम फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है वो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो मैं अब एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं। एग्जांपल है पहला 3C2। तो फर्स्ट एग्जांपल कि 3C2 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 3C2। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं NCR का, तो देखो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां पर n कितना हो गया, 3, और r कितना हो गया, 2। तो हम यहां पर लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r की जगह 2 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये बना कुछ 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल with the help of formula n factorial, that is n into n minus 1 और into n minus 2, ऐसा कब तक जाना है, 1 तक। ये फॉर्मूला हम 3 फैक्टोरियल के लिए लगाएंगे और 2 फैक्टोरियल के लिए भी लगाएंगे। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1। तो 3 फैक्टोरियल अगर देखा जाए तो 3 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू 3 माइनस 2। तो देखो 3 माइनस 2 तक ही गए हैं क्योंकि जाना कहां तक है, लास्ट 1 तक। ठीक है, तो जब तक 1 नहीं आ जाए घटाते जाओ, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 माइनस 1, 1 आ गया, रुक गए।
1 फैक्टोरियल कितना हो गया 1। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3। तो बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन चीज नहीं है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं वो याद रखना है और आप अप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम लेके देखें तो सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज 5C3। 5C3, तो 5C3 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r की जगह हो गया 3 फैक्टोरियल और n माइनस आर दैट इज 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मिला डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मिला और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मिला। अब हम फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक एक घटाते गए, कब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए। डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 2 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज 5 फैक्टोरियल। अब अगर हम सॉल्व करें तो देखो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया। ठीक है, 2 से ये 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना आ गया 10। तो आंसर इज 10। तो बहुत सिंपल सा है, आप बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इजीली निकाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब हम कुछ और एक्सपेंशंस देखेंगे बायनोमियल के जो कि फिजिक्स में यूज हो सकते हैं। तो अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम के, कि अगर x और a रियल नंबर्स हैं जैसा कि पहले भी थे, n पहले था पॉजिटिव इंटीजर पर अब क्या है n पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो जब n कुछ भी हो सकता है तब x प्लस ए की होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो जरा देखो ध्यान से, इस चीज को मैं कैसे लिख रहा हूं, x प्लस ए की होल पावर n को मैं लिख सकता हूं, अगर मैं a बाहर ले लूं तो मुझे मिलेगा a की पावर n बाहर मिल जाएगा और ये बनेगा x अपॉन a प्लस 1 की पावर n। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं a की पावर n 1 प्लस x अपॉन a की होल पावर n। ठीक है, और अब मैं चाहे इसका एक्सपेंशन करूं या इसका, बात एक ही है। तो मैं इस चीज को यहां लेकर चल रहा हूं, तो देखो a की पावर n 1 प्लस x अपॉन a की होल पावर n का मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं। तो a की पावर n को एज